Hello everyone, it's Anshika this side, and today in this video I'm gonna tell you all about SST. This is going to be your ultimate SST guide. Let me tell you that I've scored 98 marks in SST board exam class 10th. So I think I'm the right one to guide you all. Okay. So without any further ado, let's get started with the video. This is going to be your ultimate SST guide video in which you will get to know about the strategy, about the book list, about the teachers, about how to revise, how to write answers, and everything related to SST. Because now this time your goal is not to score 98 marks but a perfect 100. Okay. So yeah, the number one thing that needs to be done in order to score 100 marks in SST is understanding SST. SST is not a one subject. We know that SST is 4 subjects in one. We know that. Number one, we have history, in which we talks about the world, the history, right? We have Number two, we have geography, in which we talks about the industry, minerals, and things like that. And then we have civics, in which we discuss democracy, power, and things related to that particular concept only, right? And then we have economy, in which we deals with trade, with money, right? So we have 4 different subjects in one subject only. Okay, so we have to ace all 4 of them. We have to understand this SST, what is it about, what is the syllabus, and everything related to that. Okay, now we are going to discuss how to study SST smartly, right? We have to follow a 3R formula. 3R formula, where the 3 R's, the first R stands for read, the second R for revise, and third R for recall. Okay, so in the first step, what we are going to do is that we are going to go through the NCERT very thoroughly, like line by line. Okay, we have to read the NCERT line by line because it's your best friend, your Bhagavad Gita, whatever holy book you want to call it. It is your guide, it is your best friend in your whole class 10 SST. Okay, this will not leave you until the very end of your class 10 and will give you the results. Okay, so we have to discuss that, we have to read that in very detail. Okay, yes, so we are going to read NCERT, then second step we are going to make short notes for ourselves. Okay, अब हम क्या करेंगे, हमने रीड कर ली एनसीईआरटी अच्छे से, लेकिन उसके इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, लाइक 15-17 पेजेस का अगर एक चैप्टर है, वी विल नॉट बी एबल टू रिवाइज दैट एट द वेरी लास्ट मूवमेंट. ओके, एट द वेरी लास्ट मूवमेंट. ओके, so for that what we are going to do is that we are going to make a short notes, 1 pager, 2 pager notes for SST for each freaking subject. Okay, अब आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे माइंड मैप्स के थ्रू. नॉर्मली वी कैन मेक बेसिक कंसेप्ट नोट्स, दैट इज 1 pager, 2 pager notes for SST. Okay, where you will be just writing the keywords so that you can write them. You know what, I got 98 marks in SST, as I've already told you that. मैंने लाइक SST में नॉर्मली चीजें लर्न नहीं करी है, कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी चीजें मुझसे लर्न नहीं होती थी, राइट? सो व्हाट आई डू वाज दैट कि मैं कुछ कीवर्ड्स लर्न कर लिया. अगर ये पर्टिकुलर आंसर मुझे 1.5 पेज 2 पेजेस में लिखना है तो मुझे सिर्फ 5 पॉइंट पता है, राइट? एंड देन आई विल बी क्रिएटिंग द हेडलाइंस फॉर ईच फ्रीकिंग पॉइंट एंड देन आई विल इलैबोरेट दैट. मेरे को सिर्फ वो हेडलाइन का एक वर्ड पता है एंड आई हैव टू इलैबोरेट दैट इन एग्जाम. ओके, सो हमें इतने ज्यादा मेमोराइजेशन के बारे में नहीं जाना है, राइट? SST it's not about memorization, it's about understanding the concept, understanding the things that has happened. Okay, so वो चीजें होती है. तो आप नोट्स बनाओगे अपने लिए so that आप एंड में उसको रिवाइज कर सको, आपको पूरी बुक को वापस ना गो थ्रू करना पड़े. मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ SST में, सो पर्सनली मैंने तो कोई रेफरेंस बुक यूज नहीं करी थी एंड आई थिंक आपको भी ऐसे जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बिल्कुल NCERT नहीं समझ आ रही है, you can go for any reference book like Oswal or any other whatever you like. Okay, otherwise like I'm talking about question bank mainly. Otherwise मेरे को नहीं लगता आपको जरूरत है SST के लिए कोई भी रेफरेंस बुक की, बिकॉज मैंने खुद भी नहीं करी थी, तो आई विल नॉट रिकमेंड. ओके, टॉकिंग अबाउट रिविजन कि आपने एक बार NCERT पढ़ी, नोट्स बना लिए, अब आप कैसे रिवाइज करें. यू हैव टू रिवाइज दोज थिंग्स इन अ स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक, अकॉर्डिंग टू द स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक. लाइक अगर आपने आज ये चैप्टर पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, तो आप कल सुबह एक बार वापस पढ़ो, फिर 3 डेज के बाद, फिर 7 डेज के बाद, फिर 15 डेज के बाद, फिर 1 मंथ, एंड देन फिर जब आपके एग्जाम्स होते रहे तब आप पढ़ सकते हैं, राइट? और अगर आप नहीं तो थोड़ा और लंबा ब्रेक ले सकते हैं, लाइक 1 डे, 2 डे, 5 डे और 10 डे, देन 1 मंथ, राइट? इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज आई नो टाइम बहुत लिमिटेड है एंड आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, राइट? सो हम ये चीजें कर सकते हैं. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द 3R, राइट?
That was read, revise and recall. So let's discuss about recall. Under this you can use the technique of active recall. Like आप क्या करेंगे, अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, लाइक आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है, राइट, अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, अब आप खुद को टेस्ट करो, बुक को बंद कर दो, लाइक क्लोज योर बुक, ओके। अब जो भी आपको एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक आपने उठाया, कोई भी क्वेश्चन आप यूट्यूब पे या गूगल पे देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करो, देखो आपको कितना आता है। किसी भी टॉपिक में आपको लगता है पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर मैं नहीं कर पाई हूँ या फिर नहीं कर पाया हूँ, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट अगेन उस टॉपिक को एनसीईआरटी से देखो एंड यू कैन रिवाइज दैट। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मेथड फॉर यू टू रिवाइज योर होल सब्जेक्ट, ओके। सो या नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। बिकॉज एसएसटी सिर्फ लर्न करने की कोई चीज नहीं है, इसमें आंसर जिस तरीके से आप प्रेजेंट करने वाले हैं, जिस तरीके की आपकी प्रेजेंटेशन होगी, जैसा आप आंसर लिखते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, ओके। सो जैसे मैंने अभी बोला कि आई यूज्ड टू राइट आंसर्स इन हेडिंग, हर पॉइंट में एक हेडिंग होती थी एंड देन फिर उसको एलेबोरेट में करती थी। सो इस तरीके से अगर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 5 to 6 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 मार्क का है तो 3 to 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट। इन दिस वे आपको ये भी चीजें रखनी है कि जितने मार्क का क्वेश्चन है आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो उस क्वेश्चन की नीड को, राइट। उस जितना पर्टिकुलर मार्क्स का वो क्वेश्चन है आप वो अटेन कर पा रहे हो। आपको टीचर को लगना चाहिए कि स्टूडेंट को इतना आता है जितना पूछा गया है, राइट। सो दैट्स व्हाट यू आर गोना डू, ओके। आप हमेशा हेडिंग में लिखना, हमेशा की पॉइंट्स में लिखना, बुलेट पॉइंट्स में लिखना, नेवर राइट इन पैराग्राफ्स इन एसएसटी बिकॉज आई थिंक टीचर डज नॉट हैव दैट टाइम टू रीड ईच एंड एवरी फ्रिकिंग लाइन ऑफ योर आंसर, राइट। आई डोंट थिंक सो दे विल चेक दैट। व्हाट आई थिंक इज दैट जस्ट दे विल चेक द हेडलाइन, उनको दिखेगा कि हेडिंग्स जो है उसमें आपको पता है कि ये टॉपिक में ये चीजें हैं एंड आपने इलेबोरेट कर रखा है, वो पढ़ेगा भी नहीं इलेबोरेशन में भी क्या लिख रखा है, राइट। तो ऐसा इतना ज्यादा डिटेल, इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हेडिंग्स लर्न करनी है, वो सारे की पॉइंट्स याद करने, मेनली कीवर्ड्स, राइट। प्लीज टेक अ डीप ग्लैंस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग अबाउट द कीवर्ड्स, अबाउट द की हेडिंग्स, राइट। So answer presentation is the most important element in order to score a perfect 100 in your SST. Moving on to the next thing. The next thing that I feel that usually students like lose their marks in this particular thing, that is map work. Map work is very important. हमें लगता है कि हम उसको एंड में कर लेंगे, सारे मैप्स को एक साथ कलेक्टिवली बाद में करेंगे, बट वो बात कभी नहीं आता है, अभी तक नहीं आया, आगे भी नहीं आने वाला। मैप वर्क को अभी करो, टाइमली करते रहो, जो भी आपके टीचर आपको करा रहे हैं वो टाइमली आप मैप वर्क करते रहो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको एक भी मार्क्स अपना मैप वर्क में तो नहीं कटवाना है, फॉर श्योर, ओके। आपको ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि आपको मैप वर्क अच्छे से कंप्लीट करना है, ओके। या सो दैट इज द थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द टीचर्स, हम बुक्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कोई गाइड चाहिए, you can go for any reference book if you want to, or maybe any question bank, okay. The third thing I already discussed, हम क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर कर सकते हैं एंड में, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप उससे अपने आप देख सकते हैं कितना आपको आता है कितना नहीं आता है, राइट। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं गूगल पे नॉर्मली, और मे बी आप कोई बुक खरीद सकते हैं उसके लिए सेपरेटली। I had one book जिसमें कि सारे हर सब्जेक्ट के 10 years पेपर दिए हुए थे, so I had that, you can purchase that too, okay, if you want to, okay. So now talking about the subject wise strategy, हमारे पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मेन चीज आपको फोकस करनी है डेट्स पर, कि कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का आपसे पूछ रहे हैं ना तो आपको डेट पता होनी चाहिए। अगर आप लिखेंगे ना तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का कि टीचर को लगेगा दैट यू आर समबडी हु नोज एवरीथिंग, राइट। तो डेट्स हर जगह लिखने का ट्राई करो, कोई भी नेम्स आ रहे किसी भी पर्टिकुलर लीडर्स या फिर कोई लाइक फेमस पर्सनालिटी का नेम है, यू कैन राइट दैट, यू कैन कोट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर आंसर एंड यू विल मेक दैट हाईलाइट, यू विल क्रिएट अ हाईलाइट and the teacher will think that yes you know the right thing, okay. So that is the main important thing in history. Now talking about geography, as I told you, map is the most important thing. आपको मैप बहुत अच्छी तरीके से करना है, सारे मिनरल्स वगैरह कुछ चीजें हो या क्रॉप्स वगैरह जो भी नेम्स पर्टिकुलरली हो उनको अच्छे से करो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू उनसे रिलेटेड इतने ज्यादा नहीं आते हैं और क्वेश्चंस तो आपको पता ही होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले, सो इतना ज्यादा लाइक उन चीजों पे इतना ज्यादा फोकस मत करो, थोड़ा आप कर सकते हो वैसे ही, ओके। देन वी हैव दैट इज सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स। सो उसमें आपको सारी जितनी भी पार्टीज वगैरह के नेम है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, डेमोक्रेसी पार्ट से रिलेटेड कोई भी नेम है किसी कंट्री का, सो यू कैन लर्न दैट, ओके। आपको करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ओके। देन वी हैव इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई भी टर्म आपको दिया है, जीडीपी या फिर कुछ भी चीजें,
राइट, ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी दिया है या फिर कोई भी नेशनल इनकम दिया है, कुछ भी ऐसी चीजें की बात हुई है, ऐसी चीजों की बात हुई है, फिर एक्सपेक्टेंसी रेट दिया है, राइट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा डेटा वगैरह कलेक्ट करना पड़ेगा, उनको लर्न करना पड़ेगा, राइट, सो दैट आप अपना आंसर और इनहेंस कर पाओ, राइट। सो आप इस तरीके से अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे से, ओके। Lastly, I would like to say that SST is not about memorization, it's about understanding. Understanding how the world was created, how everything goes around us and everything like that, okay? So आपको हर चीज बहुत अच्छे से लर्न करनी है, पढ़नी है, एंड आप अच्छे से अपना एग्जाम दोगे. आई नो यू कैन स्कोर 100 out of 100 marks as well, okay? So I think if you like this, I hope you like this video, and if you really did, make sure to subscribe to this channel because I'll be making more videos on other topics, whatever you like. If you have any freaking query, you can ask in the comment section and I'll surely be replying to that, okay, in detail, okay, so that I can make you understand every freaking thing. And yeah, watch this video and share this video with your friends, like and share this video, subscribe to this channel, and I'll meet you next time with a new and a great video. Till then, bye bye.